Hello students, so we have already discussed behavior of electric dipole in a uniform field. हमने देखा कि जब भी हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा। तो दो चीजें हमने देख ली कि जो डायपोल है उसे यूनिफॉर्म फील्ड में रखने से जो नेट फोर्स है उस पे एफ नेट वो जीरो ही होगा हमेशा, और जो टॉर्क है वो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, सो मैग्नीट्यूड वाइज इट इज पी साइन थीटा। ओके, तो टॉर्क जो है वो डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क को हम लिख सकते हैं मे बी जीरो, टॉर्क इज मे बी जीरो, लेकिन फोर्स को हम लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज zero. It has been asked once in MCQ also that force is always zero and torque is may be zero because torque depends on the orientation of dipole moment and electric field. So this we have discussed about behavior of dipole in uniform electric field. Now the next part is behavior of dipole in non-uniform electric field. देखिए ये काफी important topic है, behavior of electric dipole in non-uniform electric field. Okay, suppose that we are having this kind of non-uniform electric field which is represented by E. Now value of electric field will be different at different points. This electric field is varying. हमें पता है कि अब place where density of electric field lines is more, electric field over there is stronger, and over here where electric field lines are spreaded, intensity of electric field is weak at this point. ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस डायपोल को रखा हुआ है, ये डायपोल के दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू, और ये जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे चलो पॉइंट ए, और ये है हमारा पॉइंट बी। तो हमें पहले ढूंढना है कि ये डायपोल पे क्या इफेक्ट आएगी, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डायपोल एंड इट विल रोटेट इन व्हिच डायरेक्शन। सो फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज कैन बी रिटन एज Q into vector EA. Let us assume that electric field in this region or at this point is given as EA, and force acting on negative charge will be opposite to electric field, so that will be Q into EB. Now if I consider this as x-axis, if I consider this as y-axis, then we'll have to calculate what is the net force that is acting on this dipole. So force acting on positive charge F plus is Q into EA, and force acting on negative charge is minus Q into EA. So what is net force acting on this dipole? F net. F net can be written as force acting on positive charge plus force acting on negative charge. Force acting on positive charge we have already done it as Q into vector EA, और force acting on negative charge क्या होगा, Q into EB with minus sign. So net force जो होगा Q कॉमन ब्रैकेट में वेक्टर EA माइनस वेक्टर EB, ये जो है हमें नेट फोर्स मिलेगा. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रिक डायपोल. Now, as this region is non-uniform, non-uniform का मतलब क्या है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी, और अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है तो हमें पता है कि ये जो वेक्टर EA है और EB वो दोनों सेम नहीं होंगे as they are different point. EA is not equal to EB and therefore vector EA minus EB, difference of that is not equal to 0, so F net is not equal to 0. तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं
के फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर डाइपोल which is placed in non-uniform field is always what? Non-zero. जैसे यूनिफॉर्म फील्ड में ऑलवेज जीरो होता है, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉन जीरो. कभी भी फोर्स जीरो नहीं होगा. ऑब्वियसली ये फिगर से हमें पता चल रहा है कि ये जो है उसकी वैल्यू ये EB से ज्यादा होगी. EA will be greater than EB. So net force हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा? नेट फोर्स जो है वो इंक्रीजिंग फील्ड के तरफ ही लगेगा. डायपोल का ओरिएंटेशन आप चेंज भी कर दोगे तो भी नेट फोर्स जो हमेशा ना लगेगा. It will act towards increasing electric field. We'll come to it afterwards. But we have at least got one idea that whenever we place dipole in non-uniform electric field, the net force acting on it is always non-zero. Now what about torque? Torque पे क्या वैल्यू होगी टॉर्क की? ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, ये A, ये भी A, but with minus sign to opposite position vectors. So over here A into A cross QEA, यहाँ पे minus A cross QEB. अगर ये पैरेलल होता तो दोनों टॉर्क जो है वो कैंसिल हो जाते क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो होता. लाइक दिस में अगर हम डायपोल को पैरेलल रखते तो पोजीशन वेक्टर प्लस है और पोजीशन वेक्टर माइनस है और ये फोर्स F प्लस और ये फोर्स F माइनस, इसके बीच का एंगल जो है वो भी जीरो होता, इसके बीच में भी एंगल जीरो होता. तो प्लस टॉर्क जीरो होता, माइनस टॉर्क जीरो होता, तो नेट टॉर्क इसमें हमें जीरो ही मिलता. तो अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो टॉर्क जीरो हो सकता है, लेकिन फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकता. तो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे कि टॉर्क की अगर बात की जाए तो टॉर्क में बी जीरो, लेकिन फोर्स जो है वो ऑलवेज नॉन जीरो. तो फिर से एक बार अगर हम कंपैरिजन कर ले यूनिफॉर्म की और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की. यूनिफॉर्म फील्ड की अगर बात हो रही है तो फोर्स इज ऑलवेज जीरो. नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स इज ऑलवेज नॉन जीरो. यहाँ पे टॉर्क में बी जीरो और यहाँ पे भी टॉर्क जो है वो में बी जीरो हमें मिलेगा. फिलहाल आपको डायरेक्ट याद रखना है कि यहाँ पे जो नॉन जीरो फोर्स है वो जनरली कौन से डायरेक्शन में लगेगा. तो ये जो नॉन जीरो फोर्स का जनरल डायरेक्शन है वो ऑलवेज टुवर्ड्स इंक्रीजिंग फील्ड होता है. उसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. बट इट इज टुवर्ड्स इंक्रीजिंग फील्ड. चलो हम इसका एक इक्वेशन डिराइव करते हैं. जनरल एक्सप्रेशन है ये भी. मान लो कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट के साथ चेंज हो रही है. हमारा ओरिजिन है. सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन E depends on x coordinate, so it is E which is function of x into I cap. मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. दोनों चीजें हो सकती है. x एक्सिस के साथ इंक्रीज भी हो सकती है या x के साथ डिक्रीज भी हो सकती है. यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है. e into x, e into x square, e by x, e raised to x, whatever it can be. But electric field जो है it depends on x axis. Electric field is function of x coordinate. तो ये केस में अगर हमने एक डायपोल रखी हुई कुछ इस तरीके से, ये हमारे डायपोल का नेगेटिव चार्ज माइनस q, ये हमारे डायपोल का पॉजिटिव चार्ज प्लस q, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट वेक्टर p, this distance from minus q to plus q, we already know it is equal to what? 2a, and angle between dipole moment and x-axis is equal to say theta. मान लो कि हमने एक डायपोल को x एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे प्लेस किया हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी मैंने पहले आपको बता दिया कि वो x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड हो रही है. x कोऑर्डिनेट के साथ चेंज होगी वो. और डायपोल मोमेंट को हमने इस तरीके से रखा हुआ है
कि डायपोल मोमेंट और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है, थीटा है। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन डायपोल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डायपोल। तो ये जो प्लस क्यू है इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये मैं मान लेता हूं x2, और ये जो माइनस क्यू है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1। द प्लस क्यू चार्ज इज हैविंग its x coordinate as x2 and minus q charge is having its x coordinate as what, minus q. So force acting on this plus q charge, remember that electric field at both these points is having same direction, that is along x axis. Only thing is changing is this magnitude. This magnitude depend upon the x coordinate. So the force acting on plus q charge can be given as F plus vector q into E x2 into I cap. This is the expression of force acting on positive charge q into E. लेकिन E यहाँ पे क्या है हमें नहीं पता, E की वैल्यू x2 पे डिपेंड है, तो E at x2 into डायरेक्शन I cap. सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज पे क्या फोर्स होगा, नेगेटिव चार्ज का जो फोर्स होगा वो q into E x1 into I cap with minus sign. This is the value of what, F minus. हमें पता है कि चार्ज अगर नेगेटिव है तो फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस आई कैप लिखा है। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E एट दिस पॉइंट x1। अब ये केस में अगर मैं नेट फोर्स ढूंढना चाहूं तो नेट फोर्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। सो नेट फोर्स विल बी F plus plus F minus. It is vector addition of forces that is acting on the both charges. F plus, as we already done, is Q into E at x2 I cap minus Q into E at x1 I cap. This is the, what we can say, the forces that are acting on plus Q and minus Q respectively. इसमें से मैं Q कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या बचेगा, E at x2 minus E at x1 into I cap. So it is basically Q into delta of vector E. दोनों जो पॉइंट्स है उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस है, that is delta E. Now what we can do, we can multiply and divide by this distance, that is delta x. I divide this with delta x and I multiply with delta x. ये स्टेप आपको याद रखना, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया डेल्टा x के साथ। तो अगर इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं हम डेल्टा x के साथ, तो ये जो डेल्टा x है इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो ये ट्रायंगल देखिए, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो यहाँ पे जो cos थीटा है वो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड, एडजेसेंट साइड डेल्टा x डिवाइड बाय 2a, तो डेल्टा x की वैल्यू मुझे मिलेगी 2a cos थीटा। ये डेल्टा x की वैल्यू अगर एक्सप्रेशन में मैं रखता हूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डायपोल, F net, Q will remain as it is, delta E by delta x. For this delta x I can replace it with 2a cos theta. Now Q into 2a, this Q into 2a is nothing else but P delta E by delta x into cos theta. This is the value of net force. This is
F net. One more thing, that if this delta x is very small, अगर डायपोल की लेंथ छोटी है, डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, तो ये F net और छोटा हो जाएगा, that is P into d by dx into cos theta. So F net का जो मैग्नीट्यूड होगा बेसिकली वो P डॉट d by dx कुछ इस तरह से हमें मिलेगा. तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा फोर्स का है, that is acting on dipole placed in non-uniform electric field. But see, this non-uniform electric field is varying only in magnitude. Its direction is always along x-axis. तो अगर F net की आपको जरूरत है तो P into d by dx, dipole moment multiplied by differentiation of E with respect to x. इस तरीके से हम इजीली जो है इसके नेट फोर्स की वैल्यू ढूंढ सकते हैं. देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अभी अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा उससे रिलेटेड है. ये क्वेश्चन नंबर है 1.27, आपकी एडिशनल एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है. क्वेश्चन को पढ़िए तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर इन z डायरेक्शन. उसका डायरेक्शन z है, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग. इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग एट द रेट 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर. इट इज इंक्रीजिंग अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन. ये मान लीजिए हमारा z डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यही हमारा डायरेक्शन है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है z डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. मैग्नीट्यूड के चेंज का रेट क्या है, 1 मीटर में ये 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम चेंज हो रहा है. और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल मोमेंट रखा हुआ है, ये हमारा डायपोल मोमेंट, उसका डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव z डायरेक्शन में है, माइनस k कैप डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू हमारी 10 पावर -7 कूलम पर मीटर. तो यहाँ पे -q चार्ज होगा यहाँ पे, और यहाँ पे +q चार्ज है. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and direction of dipole moment, they are mutually opposite. What is the force acting on this dipole? तो मैग्नीट्यूड तो ढूंढना अभी काफी इजी है. अभी अभी हमने इक्वेशन डिराइव की, अगर x डायरेक्शन में चेंज हो रहा था तो p डॉट d by dx, अगर y डायरेक्शन में चेंज होगा तो p डॉट d by dy. यहाँ पे z है तो p डॉट d by dy. तो फोर्स विल बी p डॉट de by dz. But angle between P and E over here, ध्यान दीजिए, angle between P and D is equal to pi. So यहाँ पे P और E के बीच का एंगल जो है माइनस है, तो डॉट प्रोडक्ट की वो माइनस P d by dz P डॉट E. यहाँ पे इसे हम P डॉट E को PE cos pi लिख सकते हैं. पाई की वैल्यू माइनस में, तो ये यहाँ पे माइनस आया हमारा, माइनस पी डी बाई डी जेड. अच्छा, पी की वैल्यू क्या है हमारी, पी की वैल्यू है 10 पावर -7. डी बाई डी जेड क्या दिया हुआ है, 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर. तो जो फोर्स है वो हमें इजीली मिल सकता है 10 पावर -2 न्यूटन. ये नेगेटिव साइन क्यों आ रही है यहाँ पे, नेगेटिव साइन के लिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा z डायरेक्शन, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ f माइनस. पॉजिटिव पे कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दिस विल बी द पॉजिटिव चार्ज. सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे z इंक्रीज हो रहा है, तो ये f माइनस की वैल्यू जो है वो f प्लस से ज्यादा होगी, तो नेट फोर्स कहाँ होगा, नेगेटिव साइड डायरेक्शन में. तो इसलिए ये माइनस साइन यहाँ पे आ रही है कि नेट फोर्स इज इन नेगेटिव z डायरेक्शन. तो यहाँ पे जो हमने बोला था कि फोर्स जो है वो इंक्रीजिंग फील्ड में लगेगा, या तो उससे ऑपोजिट जा रहा है, फोर्स जो है वो टुवर्ड्स डिक्रीजिंग फील्ड लग रहा है.
ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं और यही डायरेक्शन में ये इंक्रीज हो रहा है, जो डायरेक्शन की है इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, और इसमें मैंने उसके पैरेलल एक डायपोल रखा है, ये -q और ये +q चार्ज। तो यहाँ पे +q पे क्या फोर्स लगेगा, q इंटू ई प्लस, -q पे क्या फोर्स लगेगा, -q इंटू ई माइनस। ऑब्वियसली E plus over here is greater than what, E minus, and therefore F plus का magnitude will be greater than F minus. Therefore we can say dipole moves towards increasing field. यही इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही डायरेक्शन में अगर डायपोल इंक्रीज हो रहा है, इसमें अब मैंने डायपोल को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा होगा, ये -q है और ये +q है। तो अब -q पे क्या फोर्स लगेगा, -q इंटू ई, +q पे क्या फोर्स लगेगा, q इंटू ई प्लस। अब यहाँ पे E माइनस का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन E प्लस है। Your electric field is increasing towards the direction of electric field. Dipole moment जो है हमने कैसे रखा हुआ है, dipole moment को हमने एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, E माइनस ग्रेटर देन E प्लस। Therefore हमें आंसर मिलेगा डायपोल मूव्स, यहाँ पे भी F माइनस ग्रेटर देन F प्लस है, ये वाला फोर्स बड़ा है, ऑपोजिट टू व्हाट, डायपोल मूव्स ऑपोजिट टू इंक्रीजिंग फील्ड। लेकिन कुछ देर पहले मैंने बोला था ये दोनों पॉसिबिलिटी में से ये पहली पॉसिबिलिटी की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर ये पोजीशन में से डायपोल थोड़ा भी रोटेट हो जाता है, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा +q, ये हमारा -q, +q के ऊपर ये फोर्स है qe, -q के ऊपर ये फोर्स है -q, ये सेंटर ऑफ डायपोल और ये उन दोनों के पोजीशन वेक्टर। अगर ये डायपोल even if it rotates by a very small amount, say even 1 degree or 2 degree, what will happen, the torque acting on this dipole, इसके ऊपर टॉर्क कौन से डायरेक्शन में लगेगा, r cross f। see, this is the position vector a, this is qe, so you have to curve your finger from r to f, r cross f is in clockwise direction। सिमिलरली ये -q इसमें भी कहां पे लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये डायपोल जो है, जो ये ओरिएंटेशन है, इट विल बिकम पैरेलल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, ये थोड़ा भी रोटेट होता है तो इसका ओरिएंटेशन है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वापस वो यही पोजीशन में आएगा, और यही पोजीशन में आएगा तो इट विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी ज्यादा डिस्कशन जो है हमारे सेकंड चैप्टर में होगी। ये जो पैरेलल पोजीशन है, यहाँ पे भी टॉर्क नहीं लग रहा है, तो जब टॉर्क 0 है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो पैरेलल वाली जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और एंटी पैरेलल वाली जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। विल डिस्कस दैट with respect to or with context to potential energy in chapter 2.